میں یہ جملہ بول دیا کرتا ہوں مگر یہ تعلی کے لیے نہیں، انا میں نہیں، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ الحمدللہ میں نے اختلافی موضوع پر 1000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ قادیانیت کو ڈائریکٹ بلا واسطہ ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، وہابیت کو ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، صلح کلیت کو میں نے پڑھا ہے، وہابیت دیوبندیت کو میں نے پڑھا ہے، رافضیت کو میں نے پڑھا ہے، تفصیلیت کو میں نے پڑھا ہے۔ ان موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابوں کا میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا ہے۔ علامہ بلیاوی صاحب اور ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے حضرات ہوں جنہوں نے دارالعلوم عالمیہ کی لائبریری کو دیکھا ہو، تقریباً 40,000 کتابیں دارالعلوم عالمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں، جہاں پر ہمیشہ لوگوں کی تحقیق کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے اتنی بڑی وہاں کی لائبریری ہے جس میں یہ پورا مجمع آ جائے گا۔ 40,000 سے زیادہ کتابیں عالمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ سے تو نہیں مگر ان طلبہ سے جو آج فارغ ہو رہے ہیں ان سے کہوں گا، اقرا یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے۔ پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تب آگے پڑھو گے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت آپ کا ایمان، عقیدہ، کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن سب کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا تو نہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے نہ آپ کا کلچر محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں نے اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید سب پر مقدم ہے اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجا، اور آخری نبی ہمارے آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اب سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اگر ذکر عام ہوگا تو محمد عربی کا ہوگا، اور اگر کوئی مٹانا چاہے تو 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جو جتنا ہی مٹانے کے لیے آگے بڑھے گا، امام احمد رضا کی زبان میں ہم کہیں گے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ حضرت علامہ بلیاوی صاحب سے آپ سنیں گے کہ اس وقت دنیا بھر میں ان دونوں اہم عقیدوں پر حملہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی دشمن طاقتیں میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دشمنان اسلام نے کمر ہمت کس لی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں نوجوان روزانہ ہزاروں نوجوان اپنے عقیدہ اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے حالات کا جائزہ لیجئے، آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں قادیانیت اور اس کے علاوہ جتنی باطل طاقتیں ہیں ان سب نے سر جوڑ کر کے یہ طے کر لیا ہے کہ امت مسلمہ کو تہس نہس کرنے کے لیے آخری دم تک ہماری کوشش جاری رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کو اس طرح سے ورغلانا شروع کر دیا ہے کہ اس وقت اگر سروے کیا جائے تو روز آنا نہ جانے کتنے مسلمان نوجوان کفر کی دہلیز پر پہنچ جا رہے ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے سچ فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت آئے گا، مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے، یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ بے ایمان ہو جائے گا، صبح کو مسلمان رہے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ ہم
अपने माथे की आंखों से देखते हैं। वो नौजवान जो सुन्नी सहील अकीदा थे, अपने घराने और खानदान के एतबार से सुन्नी समझे जाते थे, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर गए और उन्होंने व्हाट्सएप खोला तो ये व्हाट्सएप के मुफक्किर, व्हाट्सएप के स्कॉलर, फेसबुक के मुहक्किकों को जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो किसी मिर्जा को सुना, किसी इंजीनियर को सुना, किसी खामिदी को सुना, न जाने कैसे कैसे लोगों को सुना। शाम को सोया था तो साहिब ईमान था, मगर उस बदअकीदे की बात जहन में बैठ गई तो सुबह होते होते बदअकीदा हो जाता है। सदक़ रसूलुल्लाह, रसूल पाक ने सच फरमाया, इंसान शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते अपना ईमान खो बैठेगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लाम दुश्मन तहरीकें चल रही हैं जो आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। एक छोटा सा वाकया आप मुझसे सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अकीदे तौहीद पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझसे एक साहब ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया और मैंने वहां सारी जरूरतों के सामान फराहम कर दिए, फीस जमा कर दी। मेरी बच्ची वहां पढ़ने के लिए गई। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बू मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती हो? कहा जब आप मिलेंगे तब मैं ये बताऊंगा। कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद मुझको उसने बहुत ही ज्यादा मजबूर किया तो फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, उस कॉलेज में गया और मैंने जाकर के अपनी बच्ची से मालूम किया और उससे मैंने पूछा कि आखिर तू इस जगह पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कहा आप मुझे यहाँ से निकाल ले चलें, उसके बाद में किसी और जगह मेरा एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं। कहा ठीक है। चुनांचे डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को घर लेकर वापस आ गए और फिर उन्होंने जामिया मिल्लिया में ले जाकर के अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। उन्होंने मुझसे बताया कि बच्ची ने मुझे घर आकर के बताया कि जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते थे, जिस क्लास में हमें दर्स दिया जाता था, उस क्लास का सिस्टम ऐसा रखा गया था कि कोई तालिबे इल्म, कोई स्टूडेंट अगर क्लास में दाखिल हो तो सामने एक मुजस्समा रहता। उस मुजस्समे को जब तक सलामी नहीं दे लेते उस वक्त तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। उसको सलामी दे करके आगे बढ़ता तब उसे क्लास में बैठने की इजाजत थी। मेरी बच्ची ने बताया कि हम पर खुदा का एहसान है कि हम अकीदे तौहीद के मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये गवारा कर लिया कि यहां से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये गवारा नहीं है कि हम रब के अलावा किसी और को माबूद बनाएं और किसी और की परस्तिश करें। मेरी बच्ची ने इसलिए उस कॉलेज से तालीम को छोड़ दिया। अगर उस बच्ची के घर के अंदर दीनदारी नहीं होती, उस घर के बच्चे और उसका बाप अगर दीनदार ना होता, उलमा से उसका ताल्लुक ना होता, तो बताइए बच्ची का अकीदा खराब हो जाता कि नहीं हो जाता? जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद पर शब खून मारने के लिए, हमला करने के लिए न जाने कितनी तंजीमें काम कर रही हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से 100 साल पहले मुतनब्बे करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कट्टा लेके आता था, पहले चोर कटारी लेके आता था, पहले चोर फरसा और तलवार लेकर आता था, पहले चोर असलहा लेकर के आता था, लाठी और डंडा लेकर के आता था। मगर अब चोर हाथ में किताब लेके आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, हाथ में तस्बीह लेकर आता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आता है, सर पर इमामा बांध कर आता है, जिस्म पे जुब्बा पहन कर आता है। इसी हालत को देख करके ही किसी ने कहा था कि चमक
चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर कलमे तैयबा पढ़ने वाला मुवहिद नहीं होता है। मुझे एक जुमला एक साहब का याद आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक साहब तकरीर कर रहे थे और अकीदे तौहीद को लोगों के दरमियान रख रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा खुदा जो चाहे वही होगा, उसकी चाहत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हाँ सही कह रहे हैं। अब जनाब ने आगे क्या कहा कि मुझे बताओ कि जब खुदा ही के चाहने से सब होता है, तो अगर खुदा चाहे कि फलां के बेटा ना हो और ख्वाजा साहब चाहे कि हो, तो बताइए बेटा होगा? जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि नहीं होगा, इसलिए कि खुदा के चाहने से होता है। और मैंने भी यही अर्ज किया कि खुदा के चाहने ही से सब कुछ होता है, मगर अब उसने किस तरीके से घपला करना शुरू किया, बल्कि सियासी जबान में अकीदे में घोटाला शुरू किया। और उसने कहा कि अगर ख्वाजा साहब चाहें कि ये काम हो जाए और खुदा चाहे कि ना हो, तो बताइए वो काम होगा? आप भी कहेंगे कि नहीं होगा। जी ही उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैंने कहा इसने अपनी खबासत कौम में दाखिल करने की कोशिश की है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक हथकंडा इसने इस्तेमाल किया। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के महबूब है, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के फरमा बरदार है। महबूब अपने मरकज़े अकीदत के खिलाफ चाहता ही नहीं है। आप ये जो कह रहे हो कि ख्वाजा साहब चाहे और खुदा न चाहे, तो बताइए वो काम होगा? मैंने कहा ख्वाजा साहब वो चाहेंगे ही नहीं जो खुदा न चाहे। ख्वाजा साहब वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, तभी तो वो खुदा के महबूब बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, एक जुमले में उसने कितने लोगों को गुमराह करना चाहा, लेकिन रजा वालों के सामने सबका निशाना थोड़ी चल सकता है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से। अभी 3-4 हफ्ता पहले मैं मुशाहदात इसलिए रख रहा हूं ताकि अपने नौजवानों को मैं मुतमईन कर सकूं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये सब उसके लिए गोया एक तमहीद है। अभी चंद हफ्ता कबल मेरे पास एक फोन आया, घंटी खत्म हुई, मैंने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कौन? उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उसने कहा मैं राजस्थान से बोल रहा हूं। हमने कहा कैसे फोन किया? कहा मुझे एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला आपको पूछना है? कहा कि ये बताइए मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? यही उसका सवाल था, मज़ारों पे क्यों जाया जाता है? तो हमने उससे पूछा कि आप करते क्या हो, आप पढ़े कितना हैं? उसने कहा कि मैंने हाई स्कूल किया है और इस वक्त मैं जॉब में हूं, एटा में मैं जॉब में लगा हुआ हूं और मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की है। मेरा घर राजस्थान है। मैंने कहा सुनिए, हम आखिर बुजुर्गों के मज़ारों पे क्यों जाते हैं? बात यह है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह के महबूबों के यहाँ अल्लाह की रहमत उतरती रहती है, वहां रहमत नाजिल होती रहती है। इसको समझाने के लिए मुझे कभी कभी एक वाक़े की तफसील में जाना पड़ता है। आपने हजरत सैयदना इमामुल मशाइख शेखुल मशाइख सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम सुना होगा कि चौचा शरीफ की बड़ी बाअज़मत शख्सियत का नाम हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां है। इन्हीं का वाकया है कि जुमे मुबारका के दिन ये किचौचा शरीफ में बैठ करके वजू फरमा रहे थे और अचानक आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने पूछा हुजूर आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? तो फरमाया कि मैं कुतुब वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूं और शाम होते होते बरेली से तार आता है कि इमाम अहमद रजा का इंतकाल हो गया। किचौचा में बैठकर जो बरेली के हालात को देख रहा है, वो नबी नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का एक महबूब बंदा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा मशाइख हैं कि बैठे बैठे अपने घर से दूसरों के हालात को
देख लिया करते हैं, तो अगर मदीने में बैठकर मुस्तफा कायनात को देखें तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। लेकिन दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान किया जाता है कि आप तशरीफ ले गए रामपुर के इलाके में, और उस वक्त नवाबे रामपुर के जाहो जलाल का शोहरा चारों तरफ था। नवाबे रामपुर ने आपके पास पैगाम भेजा कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर जलवा फरमा हो जाएं, इज्जत अफजाई फरमाएं। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली और फिर नवाबे रामपुर के घर आप तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर ने आपको अपने तख्त पर बिठाया। उस जमाने में आपके इस जमाने की तरह लाइट और पंखे का इंतजाम नहीं था, हाथ से पंखा झला जाता था। नवाबे रामपुर ने हजरत को तख्त पर बिठाया और पीछे से ताजीमन एहतरामन खुद ही पंखा झलने लगा। मजमा सामने मौजूद था। इतने में किसी ने कहा कि हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। इत्तेफाक से एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है। उसने कहा हुजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये भी कोई पूछने की बात है। हर मुसलमान ये जानता है कि बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है, खुदा दुआ कबूल करता है, और कौन कबूल करता है। उसने कहा ठीक है हुजूर, अब दूसरा सवाल ये है कि उसको कहां से पुकारा जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले, उससे कहां से बुलाया जाए, उससे कहां बैठकर दुआ की जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले। हजरत ने इरशाद फरमाया उसको जहां से तुम पुकारोगे, जहां से बैठ के दुआ करोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। दुआ वही कबूल करता है। आप मैदान कारजार में हो तब भी वो दुआ कबूल करना चाहे तो कर लेगा। आप दोस्तों की महफिल में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां दुआ करें, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, और अगर न चाहे तो खाने काबा की जंजीर पकड़ करके दिन भर खड़े रहे फिर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। दुआ खुदा कबूल करता है, और जहां से चाहे वो बंदा उसे पुकारे, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, मगर एक तीसरा सवाल और रह गया। कहा क्या है। कहा हुजूर आपने बताया दुआ खुदा कबूल करता है, आपने ये भी बताया कि उसे जहां से पुकारा जाए और जहां से उससे दुआ की जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ को कबूल कर लेगा। हुजूर दोनों बातें समझ में आ गई, मगर तीसरा सवाल यह है कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, हुजूर तब आप क्यों कहते हैं किसी परेशान ज़दा को, मुसीबत ज़दा को, आपके पास अगर कोई आसेब ज़दा आता है तो आप कहते हैं कि छोछा चले जाओ, और अगर किसी को औलाद की जरूरत होती है तो आप कहते हैं अजमेर चले जाओ, और अगर किसी को बीमारी से शिफा लेनी है, कोढ़ का मर्ज उसका ठीक होना है, तो उसको आप कहते हैं कि इसको लेकर के बहराइच चले जाओ। जब दुआ खुदा कबूल करता है तो क्यों आप बहराइच भेजते हैं, क्यों किछोछा भेजते हैं, क्यों अजमेर भेजते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है तुम्हारा सवाल सही है। बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों के। हम भी आप ही के दरमियान के हैं, ना आप इंग्लैंड से हम तुरान से हैं, हम दोनों के दोनों हिंदुस्तान ही से हैं। अगर आप मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से थोड़ी देर और समाप्त कर लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा आना उसूल हो गया। आपने फरमाया बेशक खुदा दुआ कबूल करता है, और जहां से पुकारा जाए वो अगर चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा। अब आपने उससे फरमाया आओ करीब आ जाओ। इकबाल साहब आ रहे हैं, आइए करीब आ जाइए, आप भी आ जाइए, चलिए करीब आ जाइए, ताकि आपको बलियाबी साहब का फैज मिल जाए, और अवाम अभी अपना फैज जेब से निकाल कर आपके दरमियान रखेगी। आइए तशरीफ ले आइए, उधर से आ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए। आप हजरात अपनी जगह बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ। अब वहां से उठा, आपके पास कुर्ब में आकर बैठ गया। हजरत ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद
फरमाया अपनी जगह पर चले जाओ। अब फिर वो अपनी जगह पर चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया वो साइल किधर है जिसने सवाल किया था? कहा जी हजरत हाजिर हो। कहा आओ करीब आ जाओ। उसने कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुलाकर मुझे भरी महफिल में रुसवा किया, आपने मुझे बुलाया कोई जवाब नहीं दिया और आपने मुझे वापस कर दिया, क्या हुजूर फिर ऐसा ही करेंगे? फरमाया कि आओ करीब तो आओ। फिर वो दोबारा करीब आकर बैठ गया। हजरत ने इरशाद फरमाया ये बताओ कि तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें हवा लग रही थी या मेरे करीब में आए तब तुम्हें हवा लगने लगी है? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर मैं करीब आपके बैठ गया तो मुझे हवा मिलने लगी। और हवा कौन दे रहा था? पंखा कौन झल रहा था? नौकर और खादिम नहीं बल्कि खुद नवाबे रामपुर पीछे से हवा झल रहा था, वो पंखा झलकर हवा दे रहा था। अब जी ही उस साइल ने कहा हुजूर मैं वहां था तो मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपसे करीब हुआ तो मुझे हवा मिलने लगी। हजरत ने नवाबे रामपुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया नवाब साहब आप मुझे हवा दे रहे हैं या इसे हवा दे रहे हैं? तो आपने जी ही ये सवाल किया। नवाबे रामपुर कहता है हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे यहाँ खुद ही नौकर चाकर हैं। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूं। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुन तू वहां था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, तू मेरे करीब आया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाब तुझे पंखे की हवा नहीं दे रहा है, वो तो मुझे दे रहा है, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझको भी हवा मिल गई। सुन हम ख्वाजा के यहाँ क्यों भेजते हैं? इसलिए कि ख्वाजा महबूबे बारगाहे इलाही है। ख्वाजा का दरबार वो है जहां पर रहमतों का हरदम नज़ूल होता है, तजल्लियात की बारिश होती है, अनवारे इलाही वहां झमाझम बरसते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये अवाम इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो तकद्दुस नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि फौरन इन पर रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाए। हम ख्वाजा के यहाँ इसलिए भेज देते हैं कि वहां जो रहमतों की झमाझम बारिश हो रही है ये भी करीब में पहुंच जाएंगे, उस बारिश से इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर ताजुल फुक़हा। ये तो बात आ गई बरसबीले तज़किरा। उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मज़ार पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा कि वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और अपनी अर्जी उनकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि वो रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी बात जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद वो कहता क्या है, वो जुमला मैं सुनाना चाहता हूं अपने नौजवानों को और ये बताना चाहता हूं कि ये तहरीक कहां से आ रही है, ये नजरिया कहां से आ रहा है, हमारे नौजवानों में ये सोच कहां से आ रही है। वो फौरन मुझसे कहता है कि अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का ज़हन दे रही है? ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को ज़हन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी
आले सऊद के सर जाती है जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजराइली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बर्तानिया का एक वक्त हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहां मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहां कोई हक नहीं है। ये वहां हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बर्तानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मेटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बर्तानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बर्तानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी, नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा उसने कहा नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूं, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर खा मर्द हो खा औरत हो इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा, जो तारीके फर्ज हो वो फासिके मोलिन होता है, वो भला नेक कहां हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो, कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया। आप फोन रखिए, आइए कभी तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारीख है, जो फर्ज का तारीख है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शौर भी नहीं आ सकता।